तो कर्मयोग फॉलो करने के लिए हमें कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए. व्हाट इज दैट क्वालिफिकेशन? दैट इज वर्स 45. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. वेरी वेरी ब्यूटिफुल. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. क्या बनो? भगवान बोलते हैं ये जो वेद है ये त्रैगुण्य विषय है. मतलब वेद जो हमारा कर्मकांड है ये सब 3 गुणों की बात करेगा. ये पूरा संसार जो है ये 3 गुण है. व्हाट इज दिस वर्ल्ड? इट इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स in different proportion and 3 gunas in different proportion, and that is this world. So traigunya, 3 gun. Which are the 3 guns? Which are the 3 gunas? सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. माया, जैसे ही हमने माया कहा ना, जैसे हमने क्रिएशन कहा तो स्पेस आया, टाइम आया, कॉजेशन आया, कॉज एंड इफेक्ट आया, और ये 3 गुण आए. माया त्रिगुणात्मिका है. ईच वन ऑफ अस इज मेड अप ऑफ दीज 3 गुणास, सत्व, रज एंड तम. 3 गुण सब में है. अगर हम में तम नहीं होगा तो हम सोएंगे ही नहीं. Fortunately, we all sleep in the night. That is the blessing of tamoguna. So tamoguna hota hai. Rajas when we are active, and sattva when we are in equilibrium, when we are shant, when we can sit and meditate. And that balanced state of mind is sattva. So we all have these 3 gunas. So Bhagwan kya bol rahe hain? Nistrair gunyo bhavarjuna. Now, for a sadhak, initially, we can't be coming out of these 3 gunas impact, because we all are under the spell of Maya. So what Krishna is saying here is, this whole sansar is made up of 3 gunas. You become nishkam. Because if you will have sakam, then you are under the spell of the 3 gunas. What we will do? We will either do tamasic karma, or we will do rajasic karma, or we will do sattvic karma. If it is sakam, if it is desire prompted, we will get result as per our gunas. If it is sattvic, we will get sattvic. If it is rajasic. So Bhagwan bolte nahi, you become bhava Arjun. Hey Arjun, you become what? Nistrair gunya. That means you come out of the spell of 3 gunas by becoming nishkam. Don't desire. So when you don't desire, that is the first key of karma yoga. Desire, निष्काम बनो. ठीक है? निस्त्रैर गुण्य. आप ये 3 गुणों के चक्कर में फंसो मत. फिर आगे क्या बताया? निर्द्वंद्व. What is dvandva? Dvandva means duality. What duality we face? Raga dvesha. Yeah. Sukh, dukh, man, apman. All comes in pair. Day and night. Sukh and dukh. Everything is in pair. So bolte nirdvandva. So what is the meaning of nirdvandva? How can we become nirdvandva? एक तो किसी ने कहा ना राग द्वेष, तो राग द्वेष को थोड़ा कंट्रोल में रखो, चेक में रखो. और निर्द्वंद्व कैसे हो सकते हैं? हमने डिस्कस किया ना निर्द्वंद्व होना क्या मतलब. Will the sukh and dukh will disappear from our life if we become sadhak?
They will be there. There. They will be there. Day and night will be there. मान अपमान will be there. लाभ हाँ क्या करना है? सुनिता Rise beyond. मैं सुनी नहीं क्या बोला सुनीता? Rise beyond them. हाँ that means equanimity exactly Setu madam right yeah Sunita that's true rise above them even नैसर्गिक गुण जब हम 14 चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे गुणातीत होने को भगवान बोलते हैं you rise above the 3 gunas but here you know I am talking of the sadhak beginners people like us we want to understand what is कर्म योगा so यहाँ पे मतलब है आप पहले निष्काम बनो फिर निर्द्वंद्व मतलब जैसे सेतु मैडम ने कहा इक्वानिमिटी थोड़ा समभाव से ले लो ये जो आते हैं डुअलिटी इसमें बहुत ज़्यादा विचलित मत हो डोंट गेट अनड्यूली डिस्टर्ब्ड बाय दैट यू नो तो निर्द्वंद्व हो जाओ देन नित्य सत्वस्थ हो नित्य सत्वस्थ हो मीन्स गीता इज रियली लाइक अ मदर यू नो शी टीचेस अस कि सत्व गुण मतलब क्या फिर सात्विक खाना क्या सात्विक वाणी क्या सात्विक धृति क्या everything you know how it comes in Gita if we go till 18th chapter so भगवान बोलते हैं आप सात्विक बनो see each one of us have the proportion of rajasic tamasic and sattvic और हमारे पिछले कर्मों के अनुसार किसी में तामस ज़्यादा होगा किसी में राजस ज़्यादा होगा किसी में सत्व ज़्यादा होगा सो व्हाट इज़ आवर साधना इज़ टू not to be swayed by the tamas and rajas and try to be in the sattvic mode as far as possible. See, we will not be able to, you know, challenge our स्वभाव. वो अगर बहुत तामसिक है तो उसको एकदम सात्विक नहीं बना सकते लेकिन एटलीस्ट उसको गोल रखना है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है मुझे सत्व में स्थित होना है दैट कैन बी आवर गोल एंड देन यू नो जैसे गीता बताती है आपको खाना क्या खाना है आपको वाणी कैसी बोलनी है आपको दान कैसा करना है आपको यज्ञ किस भाव से करना है ऑल दैट गीता विल टीच अस सो हाउ वी विल बिकम सात्विक वो बताएंगे लेकिन भगवान शुरू में एक ब्रॉड आउटलाइन दे रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द कर्म योगा एंड इफ़ यू रियली वांट द मोक्ष देन यू हैव टू फॉलो दिस सो पहले बताया निस्त्रय गुण्य फिर बताया निर्द्वंद्व फिर बताया नित्य सत्वस्थ फिर बताया निर्योग क्षेम दिस इज इम्पॉर्टेंट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग एंड क्षेम यू नो LIC का वो लोगो है योग क्षेम वहाम्य हम गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं योग क्षेम बयान करता हूँ तो व्हाट इज योग एंड क्षेम anybody knows the meaning basic needs हाँ योग बेसिक नीड्स और क्षेम yoga is discipline no क्षेम मीन्स उसकी रक्षा करना मतलब जो हमारा नीड्स है जो हमको चाहिए वो हमको पाना है योग और क्षेम मतलब उसको रक्षा करना हम यही तो करते हैं ना मतलब हमारा प्रॉपर्टी हमारा वेल्थ वॉट एवर वी वॉन्ट टू एक्वायर इट एंड देन वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट इट योग और क्षेम भगवान बोलते हैं निर्योग क्षेम इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ आवर लाइफ हम तो यही करते हैं जो नहीं है वो अक्वायर करो और अक्वायर करने के बाद उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करो यही हमारा लाइफ है लेकिन यहाँ बोल रहे हैं निर्योग क्षेम दैट मीन्स डोंट स्पेंड योर लाइफ ओनली फॉर दैट उसको ही अपने लाइफ का फुल टाइम प्रोजेक्ट मत बनाओ क्यों क्योंकि आपने परमात्मा पे भरोसा किया और परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा योग क्षेम की चिंता मत करो बिकॉज
Prarabdha will take care of it. Law of karma will take care of it. Paramatma will take care of it. परमात्मा बोलते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं जो अनन्य रूप से मेरा भजन करता है उसका योग क्षेम मैं उठाता हूँ। आई टेक केयर। सच अ बिग अश्योरेंस। फ्रॉम आवर साइड व्हाट वी लैक इज द फेथ भगवान की बात में। सो निर्योग क्षेम। एंड देन द लास्ट इज आत्मवान। आत्मवान मीन्स ऐसे तो आप बोलेंगे आत्मा में स्थित रहना आत्मा, बट हमको तो आत्मा का भी पता वता ज़्यादा नहीं है। थैंक्स टू आदि शंकराचार्य, अगर उन्होंने भाष्य नहीं लिखा होता ना, कमेंट्री, तो हमको इसकी मीनिंग भी नहीं मालूम पड़ते। उन्होंने बताया आत्मवान मतलब प्रमादी मत बनो। प्रमादी मतलब देर आर टू वर्ड्स इन हिंदी, वन इज आलस्य and another is pramad. Anybody knows the meaning and the difference and the similarity? One is alasya, laziness. One is extra desire, hoarding things. Pramad, no madam, pramad is not that. But alasya means we all know, that is if tamogun is too much, then we feel lazy. And each one of us have, our spell of this laziness. Then, but यहाँ पे बोल रहे हैं प्रमाद। प्रमाद means what? When we are careless, when we are not attentive, when we postpone. तो बाद में कर लेंगे, बाद में सुन लेंगे, तो and सुन के भी नहीं सुनना, ये है प्रमाद। ये डेंजरस है एक्चुअली। हमारे इंडिफरेंस, चूकना ना, प्रमाद मतलब कर्तव्य में चूकना नहीं करना। हाँ, नहीं करना, जो अपनी ड्यूटी है वो नहीं करना। और मतलब ऐसा नहीं कि आलस है, ऐसा नहीं कि बॉडी इज नॉट एबल टू डू, फिर भी नहीं करना, है ना, वो दोनों में फर्क है। आलस तो कभी कभी क्या होता है, लाइक मे बी यू आर नॉट वेल, और मे बी कभी कभी मुझे मैं स्पेशली व्हेन आई वाज वर्किंग आई हैड सीन दैट एक बॉडी है ना, वो एकदम वो बोलती है कि बस आज तुम नहीं उठ सकते। हमने उसको 7-6 दिन बहुत काम दिया ना, तो सपोज संडे आ गया तो वो आपको सुला ही देगी। मतलब इवन इफ यू वांट टू गेट अप फ्रॉम द बेड ना, लाइक द बॉडी विल से नो आई वांट रेस्ट। वो हो सकता है लेजीनेस, आलस, लेकिन वो ऐसे हिंदी के सेंटेंस में जब बोलते हैं तो वो अपने प्रमाद में डूबा हुआ है, नशा टाइप का कुछ बोलते हैं ऐसे भी। प्रमाद मतलब इट इज रियली डेंजरस। शास्त्र ने बोला वो मृत्यु है, प्रमाद ही मृत्यु है। क्यों? वो देखो आचार्य शंकर ने बताया, प्रमाद होगा तो आपको मोह होगा, डेल्यूडेड, यू विल बी डेल्यूडेड। मोह होगा तो आपका अहंकार जो है वो बहुत पुष्ट होगा, आपका ईगो बहुत प्रोमिनेंट होगा, और ईगो प्रोमिनेंट होने से आपको बंधन होगा, और बंधन होने से आपको दुख होगा, क्लेश होगा। ऐसा उन्होंने सीरीज बताया। तो उन्होंने कहा ये प्रमाद है ना, ये बहुत डेंजरस। ये आपको कैसे बोलता है, ये हमको कैसे बोलता है ना कि नो यार, लेट व्हाई टू गिव प्रायोरिटी टू दिस, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, आई विल डू इट, when all duties are done, when I am retired, or ऐसा कुछ हमारे मन में कल्पना होती है अपने एक comfort, when I will have nothing to do, that time I will see what Krishna wants to say. वो प्रमाद है। मैं तो बोलती हूँ ना कि ऐसा क्यों पोस्टपोन, ऐसे मन में क्यों लाने देना कि किसी जन्म में हो जाएगा, नहीं, व्हाई नॉट इन दिस बर्थ। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि ह्यूमन बर्थ मिला, ब्रेन भी ठीक ठाक है, बात को समझने की ताकत भी भगवान ने दी, शास्त्र भी दिया, समझाने वाले भी दिया, और फिर भी अगर हमको अभी मोक्ष नहीं मिला या हम पोस्टपोन कर रहे हैं, तो अगले जन्म की क्या गारंटी है कि इतना कंड्यूसिव फिर मिलेगा? वाई टू पोस्टपोन इट?
तो बोलते हैं आत्मवान बनो, मतलब इसके पीछे लग जाओ. This should be the priority of your life and this should be the main project of your life. इतनी बातें करो, फिर आपको आगे का कर्मयोग की बात मैं सुनाता हूँ. भगवान बोलते हैं तो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान. Let us not postpone this, because if we postpone it, we are surely going to die, because we will take another birth, because we have not utilized this human birth. तो ये भगवान ने बताया, ये कुछ बातें बताई कि बहुत ज़्यादा विचलित मत हो, मान अपमान से, सुख दुख से, ये सब लगा ही रहता है. दैट इज़ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड. सो इनएविटेबल है, उस बात में ज़्यादा फंसो मत. आप अपने मन को सात्विक बनाओ और बहुत ज़्यादा अपने पोजीशन की और उसके प्रोटेक्शन की चिंता. मतलब कुछ लोगों को देखा मैंने, पूरा जीवन का प्रोजेक्ट यही है. देन व्हाट इज द रोल ऑफ परमात्मा? देन व्हाई वी आर सरेंडरिंग? तो वो तो एक ऐसी शक्ति है ना, वो बोलते हैं मैं सबका करता हूँ. तो शिवाजी के मन में जब ऐसा आया कि देखो इतना बड़ा हिंदवी स्वराज हमने बना लिया गुरुजी की कृपा से, तो गुरुजी को तो तुरंत पता चलता है ना शिष्य के मन में क्या चल रहा है. तो उसको ले गए ना, वो एक बड़ा सा पत्थर उठाने को बोला. अरे बड़ा सा पत्थर उठाओ. वो पत्थर उठाया तो अंदर से एक कीड़ा निकला. वो कीड़ा भागा. तो रामदास, समर्थ रामदास ने पूछा कि शिवा, इस कीड़े को भी खाना तू ही देता है ना? तो हिंदवी स्वराज का तूने स्थापना किया, सबका पेट भर रहा है, तो ये जो पत्थर के, इतने बड़े पत्थर के नीचे वो कीड़ा, वो जिंदा है और वो उसको खाना तू दे रहा है. इमीडिएटली शिवाजी रियलाइज्ड कि दैट वाज माय ईगो विच वाज राइजिंग एंड ही सरेंडर्ड टू समर्थ रामदास. तो इतनी बड़ी शक्ति है जो पूरे विश्व को चला रही है. वो क्या मेरे जीवन को नहीं देख रही है क्या? विल ही नॉट टेक केयर ऑफ मी? तो थोड़ा सा उस पर श्रद्धा करेंगे ना, तो फिर हम ये निर्योग क्षेम होंगे. देन ओनली वी कैन स्पेंड टाइम इन स्टडिंग एंड प्रेयर एंड नहीं तो सारा दिन यही करते हैं ना, निर्योग क्षेम. तो किसी ने बोला ना, वो आजकल आरजे जो होते हैं वो अच्छा बोलते हैं कभी कभी. तो वो बोलता है कि प्लेन में बैठते हैं, पायलट को जानते नहीं हैं लेकिन आराम से बैठते हैं, भरोसा करते हैं पायलट ले ही जाएगा. नहीं तो वो मलेशियन एयरलाइन के जैसा वो पायलट गायब ही कर दिया ना, प्लेन मिला ही नहीं. बट वी जनरली हैव ट्रस्ट कि दिस पायलट विल टेक केयर. कार का ड्राइवर रखते हैं, वी ट्रस्ट दैट ही विल टेक मी टू द डेस्टिनेशन. शिप में बैठते हैं, बोट में, बनारस में तो हम फ्रीक्वेंटली बैठते हैं बोट में. वी ट्रस्ट दैट बोटमैन कि ही विल टेक मी, मुझे पानी में डुबाएगा नहीं. तो बोले ये संसार रूपी नाव में बैठे हैं और जो इसका मालिक है उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? नहीं करते क्योंकि वो दिखता नहीं है. तो हमको थोड़ा डाउट होता है कि वो देख भी रहा है या नहीं. लेकिन भगवान बोलते हैं मैं देखता हूँ. नॉट ओनली मैं देखता हूँ, मैं आपका इफ़ यू रियली सरेंडर टू मी देन ऑल योर नीड्स विल बी फुलफिल्ड बाय मी. मैं डायरेक्ट आपको दूंगा. सो ये जो है थोड़ा डेवलप करना पड़ता है ना. बहुत सारी बातें हैं, बट आई हैव ओनली हाफ एन आवर, सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन. या एनीथिंग, एनी क्वेश्चन इज देयर? ये समझ में आया भगवान ने क्या बोला? ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है एकदम. हमको गुणातीत होने की बात ऐसा नहीं है. आप निष्काम बनो, थोड़ा अपना डिज़ायर को छोड़ो. आप सम इक्वेनिमिटी, आप सात्विक, ज़्यादा सात्विक फूड, सात्विक संगत, सात्विक company, then your thoughts also will be sattvic. And don't worry too much about your possession. And ये प्रोजेक्ट को पोस्टपोन मत करो. आत्मवान, इसके पीछे लग जाओ, ये बताया. एंड देन 46 में बोला
यावानर्थ उदपाने सर्वत्र संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. He is saying that as the use of pond in a place flooded with water everywhere, so is that of all the Vedas for the Brahmin. The Brahmin means the one who knows Brahman, not the Brahmin by caste. Vedas for the Brahmin who understand. So he is saying that, जिस गांव में नदी है, जिस गांव के पास से नदी बहती है, उसको फिर क्या कुआं, हैंडपम्प, ये सब की ज़रूरत है क्या? बिकॉज there is a river flowing. So the one who has got परमात्मा का knowledge, फिर वो ये रिचुअल्स इसमें क्यों फंसेगा? छोटे छोटे रिचुअल्स, फिर इससे मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, desire from. So that is what this verse. Just as one who gets water from the river does not attach importance to a well, so the wise do not attach any importance to the ritual action. मतलब सकाम कर्म को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते. फॉर दोज ऑफ इल्यूमाइंड कॉन्शियसनेस रिचुअल ऑब्जर्वेंस आर ऑफ लिटिल वैल्यू. तो ये जो वेद का कर्म कांड है ना, इट इज़ फॉर द बिगिनर. उसी में अटक के मत रहो, अभी ये रिचुअल करना है, अभी वो रिचुअल करना है, अभी ये तीर्थ यात्रा करना है, करो. बट you should know that you are doing this for what? You are doing this so that the mind becomes purified. And once the mind becomes purified, तो आगे पढ़ना है कि नहीं, कि उधर ही रुक जाना है. That's what he's saying. Once you have got that, then you will not give any importance to these rituals. So भगवान is telling us to grow up. बोलो. आंटी यही पे बहुत कंफ्यूजन होता है. क्या बोलो, क्या जब भगवान बोलते हैं रिचुअल्स नहीं करो, फिर हमें रिचुअल्स भी करने होते हैं. ये बहुत कंफ्यूजिंग है आंटी. नहीं, किसको बोलते हैं कि रिचुअल मत करो? ऐसा बोल रहे हैं हमारे लिए रिचुअल्स है, बिल्कुल है. ये किसके लिए बोला? मुझे मन नहीं लगता. नहीं, किसको बोला? ब्राह्मणस्य विजानत, जिसने ब्रह्म को जान लिया है ना. तो हमारे लिए रिचुअल्स की इम्पोर्टेंस है, लेकिन रिचुअल्स ही अल्टीमेट है, इसी से मेरा काम हो जाएगा, ये सोच ठीक नहीं. रिचुअल्स आर अ मीन्स सो दैट माई माइंड इज कॉन्सेंट्रेटेड टू अंडरस्टैंड परमात्मा. तो रिचुअल्स अगर हम बहुत ज़्यादा, हमारा टाइम एनर्जी सब उसी में जा रहा है, तो आपको उसको कम करना है. टू बी वेरी प्रिसाइज, वो रिचुअल्स से क्या भगवान जी, मतलब ऐसे अगर उसका रिचुअल्स से भगवान जी ये कह रहे हैं कि मैंने जाके शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ाया और जल चढ़ाया. खाली मैंने ओम नमः शिवाय बोल के मैंने जल चढ़ाया और भगवान को प्रणाम करके आया, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन हमारा लिस्ट होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या करें आंटी, हमें बताया जाता है, हमें तो नहीं, हमारे पास लिस्ट होता है कि नहीं होता है? सकाम भक्ति होती है कि नहीं? हाँ, होती है. तो वो जो सकामता है ना, उसको हटाना है, रिचुअल को नहीं हटाना है. हम जो शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो उतना ही प्यार से चढ़ाओ, लेकिन उसके साथ जो हमारा सप्लीमेंट्री लिस्ट होता है ना, कि भगवान मेरा ये कर देना, उसको थोड़ा सा कम करना. उसके लिए हम अगर बहुत नहीं समझ में आता है तो इतना तो बोल ही सकते हैं ना, भगवान मेरा जो मंगल हो, जो मेरे लिए अच्छा हो, वो करना. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू डू दिस, हम तो भगवान को ऑर्डर देते हैं ना. हम वो नहीं देते, हम नहीं दें, लेकिन हम बेलपत्र तो चढ़ाए ना. हाँ, बिल्कुल चढ़ाना है. बिल्व पत्र भी चढ़ाना है, बिल्व पत्र भी चढ़ाना है. ये किसकी बात हो रही है? जो ब्रह्म को जान गया, उसके लिए रिचुअल का कोई ज़रूरत नहीं. एक्चुअली हमारा ना शास्त्र बहुत डायनामिक है. वो बोलता है एट वन लेवल शास्त्र वासना, इसको भी छोड़ना है. टू मैनी रीडिंग बुक्स,
शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारा वो एक लेवल है, बट नॉट फॉर अस। हम जो रिचुअल करते हैं, जो हमारे कुल परंपरा है, जो घर में है, जो उसकी आप करो, बड़े प्यार से करो, लेकिन उसके साथ सकामता मत जोड़ो, उसको थोड़ा कम कर दो। कभी कभी हम बहुत डेस्परेट होते हैं तो हम भगवान से बोलते हैं, जैसे घर में कुछ सिचुएशन ऐसे आ गई है ना, कोई क्राइसिस आ गई या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, तो हम बोलेंगे, दैट इज़ ओके, फाइन, वो हम आर्त भक्त में आ जाएंगे। लेकिन हमारा ये जो मतलब मैं मंदिर इसीलिए जाती हूँ क्योंकि मेरा ये डिज़ायर है और ये पूरा होना है, ऐसे ही करते हैं कि नहीं कुछ लोग, उसको उसकी निंदा करते हैं। Fruits of action should not be expected. हाँ, should not be expected. You have to be mature, like you know. आप रिचुअल करो, आप भगवान की पूजा करो, लेकिन एक अच्छा मन से प्रणाम करो, थैंक यू बोल के, एनफ, मोर देन एनफ, है ना। तो भगवान तो सिंपल सिंपल चीज़ मांगते हैं ना, तो इसीलिए आप क्या करो कि तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण, ये किसके लिए बोलते हैं भगवान, वो समझना चाहिए। लेकिन भगवान हमको बता रहे हैं कि एक स्टेज आपकी लाइफ में आएगी जब आपके लिए ये गीता, ये रिचुअल, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर हमको बैठ के गीता पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ हमको गीता पहुँचा रही है। ठीक है ना। एक बार आपने MSc में चले गए तो फिर आप 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड की बुक वापस उसको रख के प्रिजर्व करके पढ़ते नहीं है ना, आप आगे बढ़े ना। तो हमको आगे बढ़ना है, तो भगवान ने पहले हमको देखो पामर से आगे बढ़ाया, सकाम भक्त से अब आगे ले जा रहे हैं निष्काम भक्त। तो ये हमारे लाइफ में स्टेजेस हैं और हमको ये समझना है ईमानदारी से कि मैं किस स्टेज पे हूँ। तो वो ये बताया। एंड नाउ द फेमस श्लोका, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कोटेड एंड मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्स ऑफ गीता। तो मैं आज तो थोड़ा मीनिंग बता देती हूँ। वी विल हैव फर्दर डिस्कशन ऑन इट इन आवर नेक्स्ट क्लास व्हेन वी मीट इन द मंथ ऑफ मे। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। दिस इज द नटशेल कर्मयोग। दिस इज कर्मयोग का सूत्र है ये। तो टू एक्शन अलोन यू हैव राइट and never at all to its fruit. Let not the fruit of action be your motive, neither let there be in you any attachment to inaction. 4 बात बोला भगवान ने और चारों समझने की बात है। भगवान किसको कह रहे हैं? ये अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। कर्मण्येव एव ही, ये हम सबके लिए है। We are not qualified for ज्ञान मार्ग। हम निवृत्ति मार्ग, सन्यासी बनने के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हैं। मेजॉरिटी ऑफ अस जो क्वालिफाइड है वो एक्सक्लूडेड। सो कर्मण, आपका मतलब अर्जुन को कह रहे भगवान, आपका कर्म में ही अधिकार है। आप ये मत सोचो कि सभी का। कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भगवान ने बोला सबका खाली कर्म में अधिकार है। नहीं, जो सन्यासी है, जो ज्ञानी है, जो निवृत्ति मार्ग वाला है, उसको कर्म नहीं करना है। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? हमारी। आपका कर्म में ही अधिकार है। दैट मीन्स यू डू योर ड्यूटी वेल। ये बताया। नेक्स्ट क्या बोला? माँ फलेषु कदाचन। व्हाट इज माँ फलेषु कदाचन? ये राधा कृष्णन का ट्रांसलेशन बहुत सुंदर है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं, फल में कभी नहीं। अब इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कि भगवान बोलते हैं कि फल की चिंता मत करो, फल के बारे में मत सोचो, खाली कर्म करो। अरे कोई पागल भी ऐसा कर्म नहीं करता।
unless we know what will be the result of this karma, we will not take that, you know. भगवान वो नहीं बोल रहे हैं आप फल की समीक्षा करो, आप सोचो मैं ये करूँगा तो इसका क्या फल होगा, वो आप सब सोचो, समीक्षा करो, प्लान किया, then you do your karma and now आपका फल में अधिकार नहीं है, मतलब you will get, because the world is as per karma pradhan vishwa kari rakha, it is as per our karma we get the result, but the result is not in your hand, ये बोल रहे हैं। रिजल्ट जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, I am only one of the factor. Then there are, you know, आप किस इंस्ट्रूमेंट से करें, आपका मन कैसा है, आपकी बुद्धि कैसी है, there are so many. परमात्मा, one factor is the भाग्य, तो दैव बोलते, दैव। तो इसीलिए आपका अधिकार कर्म में है, फल में नहीं। That doesn't mean that we should not bother about फल at all, और ऐसा mindless, reckless कुछ भी कर्म करो, क्योंकि भगवान ने गीता में बोला कि फल में अधिकार नहीं है, मतलब फल विल बी एज पर कर्म फल प्रदाता, तो फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसीलिए ओन मत करो कि मेरा फल। कर्म में आपका अधिकार है, फल देने का काम परमात्मा का है। देन माँ कर्म फल हेतुर्भूत, कितना ब्यूटीफुल, तुम कर्म फल के हेतु वाले मत बनो। दैट मीन्स यू डोंट डू सच कर्मा विच विल गिव अ कर्म फला टू यू एंड देन आपका बंधन शुरू होता है। हमने जो भी डिज़ायर प्रॉम्प्टेड कर्म किया ना, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो हमको भोगना ही पड़ेगा, उसके लिए हमको बर्थ लेना ही पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भूत, तुम कर्म फल के हेतु वाले मत बनो, मतलब यू डोंट डू सच वर्क दैट आपको फल का बंधन भुगतना ही पड़े। ये एक वेरी करुणामय सत्ता ही ऐसा बता सकती है। भगवान बोल रहे हैं कि तुम कर्म फल के हेतु वाले मत बनो, ऐसा मुझे ये करना है, फिर मुझे ये पाना है, मिलेगा, एंड देन वो सिंस यू आर ओनिंग द कर्मफला, द कर्मफल का जो बंधन है वो भी आपको ही होगा। लेकिन अगर हमने फल परमात्मा को दे दिया, तो मैं कर्म किया लेकिन मुझे बंधन नहीं हुआ, मेरा फायदा हुआ कि मेरा चित्त शुद्ध हुआ। ये है सीक्रेट ऑफ कर्म योगा। सो बोले तुम कर्मफल के हेतु वाले मत बनो। Let not the fruit of action be your motive. समझ रहे हैं ना? Let not the fruit of action be your motive. तो आपने बोला ओके, समझ में आ गया, 3 पॉइंट समझ में आया। क्या बोला? कि आपका कर्म में अधिकार है, एक्शन अलोन यू हैव द राइट एंड नेवर एट ऑल टू इट्स फ्रूट, फाइन। थर्ड आपने बताया लेट नॉट द फ्रूट ऑफ एक्शन बी द मोटिव, देन वाई शुड आई वर्क? फिर मैं करूँ ही क्यों, मैं कुछ ही क्यों करूँ, व्हाट विल बी द मोटिवेशन? तो भगवान बोलते हैं 4th पॉइंट, नाइदर लेट देयर बी एनी अटैचमेंट टू इनएक्शन। आप अकर्म में मत बैठ जाओ कि अकर्म में मेरी आसक्ति, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। भगवान ने बोला तुम कर्म करोगे, फल तुमको, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फिर बोला कि तुम कर्म फल के लिए काम मत करो, उसके हेतु मत बनो। फिर मैं आई हैव गॉट अ मैसेज एंड नाउ आई विल नॉट डू एनीथिंग। भगवान बोलते नो माते संगोस्त्व कर्म, तुम अकर्म में आसक्त मत हो, ऐसा मत करो। आगे भगवान बताएंगे ऐसा मत करो, क्यों मत करो, बिकॉज वी कांट बी सिटिंग। कैन यू थिंक दैट वी कैन डू अकर्म? 5 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, हमारा माइंड चलता रहेगा। बॉडी को आपने भले शांत कर लिया, आई वॉन्ट टू डू विद दिस माइंड। तो भगवान बोलते तू एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता,
इसीलिए वो बात तो चौथा पॉइंट तो तू भूल ही जा कि मैं अकर्म में आसक्त हो जाऊंगा।